সদ্যজাত বিজেপি নেতা খাজা জিৎ গাঙ্গুলি কি বলছেন? খাজা জিৎ গাঙ্গুলি বলছেন যে শুভেন্দু অধিকারীকে আপনারা টিভিতে দেখেছেন কাগজে মুড়ে কিছু একটা নিতে, কিন্তু এই মোড়কটার মধ্যে যে টাকা ছিল এইটা কে দেখেছে? আপনি দেখেছেন? এইটা জিজ্ঞাসা করছে কে? সদ্যজাত বিজেপি নেতা খাজা জিৎ গাঙ্গুলি। আজকে নির্ভীক উত্তরের পর্দায় ওই গাঙ্গুলিকে উত্তর দেওয়া হবে, কিন্তু উত্তর দেবে কে? অনিন্দ্য চৌধুরী? উত্তর দেবে কে? বাংলার মানুষ? অবশ্যই আমরা দেব, কিন্তু সর্বপ্রথম উত্তরটা দেবেন সেই সিবিআই অফিসার যিনি ওই শুভেন্দু অধিকারীর টাকা নেওয়ার ভিডিও তদন্ত করেছিলেন, ওই কেসের তদন্তকারী সেই সিবিআই অফিসার, ইতিমধ্যে যার অডিও ক্লিপ সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের বহু মানুষ শুনেছেন। সেই সিবিআই অফিসার আজকের এপিসোডে নির্ভীক উত্তরের পর্দায় এমন কিছু পর্দাফাশ করবেন যা আপনি কোনোভাবে চিন্তাও করতে পারবেন না, ফারদেস্ট ইমাজিনেশনে আসবে না। শুভেন্দু অধিকারীর টাকা নেওয়ার সম্পূর্ণ যে ক্লিপগুলি সেগুলি ভারতীয় জনতা পার্টি ম্যাথিউ স্যামুয়েলসকে দিয়ে চাপিয়ে দেয়। কে বলছেন? বলছেন সিবিআই তদন্তকারী। আসল যে ভিডিওর সিএফএসএল সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি তাদের যে আসল রিপোর্ট, সেই রিপোর্ট চেপে দেয় কে? সিবিআই। কে বলছে? সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন। সিবিআই অফিসার আইও ওই নারদা মামলার তিনি রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে ম্যাথিউ স্যামুয়েলসের দেওয়া প্রত্যেকটি ভিডিও এডিটেড। সেই রিপোর্ট সিবিআই কোর্ট পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয়নি ভারতীয় জনতা পার্টির নির্দেশে। কে বলছেন? ওই সিবিআই অফিসার, নারদা মামলার প্রথম আইও তদন্তকারী অফিসার শ্রী রঞ্জিত কুমার। আজকে নির্ভীক উত্তরের পর্দায় সিবিআই অফিসার স্বয়ং আপনাদেরকে জানাবেন কেমন ভাবে মিথ্যে ভিডিও তৈরি করেছিল ম্যাথিউ স্যামুয়েলস, কেমন ভাবে একই সময়ে একই ডিভাইস দিয়ে নাকি কলকাতার দুটো তিনটে আলাদা আলাদা অংশে ভিডিও রেকর্ডিং হচ্ছিল। সম্ভব? নির্ভীক উত্তরের পর্দায় এক্সক্লুসিভ আজকে সারা বাংলা দেখুক, জানুক এবং প্রতিবাদে গর্জে উঠুক। তার কারণ সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন নারদা মামলার ইনভেস্টিগেটিং অফিসার অর্থাৎ আইও অর্থাৎ তদন্তকারী অফিসার নির্বাচন করার সময় ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এবং সিবিআই এর দুটো মাত্র প্যারামিটার ছিল। এক, সেই তদন্তকারী অফিসার যেন বাঙালি না হন। বাঙালি শুনছেন? ভারতীয় জনতা পার্টি চালিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেন্ট্রাল এজেন্সির দুটো মাত্র প্যারামিটারের প্রথম প্যারামিটার ছিল নারদা মামলার তদন্তকারী যেন কোনো বাঙালি না হন। কে বলছেন? সিবিআই অফিসার বলছেন খোদ। এবং দ্বিতীয় কি ক্রাইটেরিয়া? দ্বিতীয় ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এমন কোন অফিসারকে মামলা দেওয়া যাবে না যেই অফিসার টেকনিক্যালি খুব এডুকেটেড। সিবিআই অফিসার খোদ বলছেন। নির্ভীক উত্তরের পর্দায় এক্সক্লুসিভ আমি অনিন্দ্য চৌধুরী এবং নির্ভীক উত্তরের সাংবাদিক অভিষেক সেনগুপ্ত, আমরা দুজন মিলে আজ কথা বলি সিবিআই অফিসার রঞ্জিত কুমারের সঙ্গে। রঞ্জিত কুমারের এক্সক্লুসিভ বয়ান শুনে নিন। নির্ভীক উত্তর থেকে আপনাদের সঙ্গে আমি অনিন্দ্য চৌধুরী। শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ। आप जब नारदा के जैसा एक हाई वोल्टेज केस, वो तो तब के दिनों में दैट वाज द बिगेस्ट केस पैन इंडिया, उससे बड़ा केस इंडिया में तब नहीं चल रहा था। तो ये जो 2016 में हमारा बंगाल में असेंबली इलेक्शन था, उससे ठीक 2 हफ्ते पहले करीबन ये जो एक पब्लिश हुआ, एक किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के द्वारा एंड नारदा वाज लीक्ड। उसके बाद आपके ऊपर इसका आप बने इसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं सर, इतना हाई वोल्टेज केस जब आपको एजेंसी ने दिया था, उसके बाद उन्होंने मतलब ऐसा कैसे उन्होंने स्पेकुलेशन में गलती कर दिया कि आपसे वो नहीं झूठ लिखवा पाएंगे, बुलवा पाएंगे? ये क्या हो गया था? व्हाट वाज द मैटर एक्चुअली? देखिए
ये उस टाइम में स्पेकुलेशन यही था कि किसी बंगाली ऑफिसर को नहीं देना है, समझ गए? अच्छा हेलो, हाँ हाँ सर बंगाली ऑफिसर को नहीं देना है, दूसरे किसी ऐसे ऑफिसर को नहीं देना है जो टेक्निकली स्ट्रांग हो। अच्छा अच्छा तो मेरा क्वालिफिकेशन सिंपल बीएससी है। अच्छा आप कैसा डेपुटेशन में आए थे सीबीआई में या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट? नहीं, डायरेक्ट, ओके। हाँ, तो ये दो क्राइटेरिया उन लोगों का था कि एक तो बंगाली ऑफिसर को नहीं देना है, दूसरा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं कंप्यूटर फील्ड में। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं हो तो आपको वो सारा एविडेंस में ज्यादा कुछ मौका ना मिले करने का या समझने का। समझ ही में नहीं है। बिल्कुल, ये दो क्राइटेरिया था इनका। सर एक बात पूछना था सर, उस टाइम आपके टाइम में हम लोग जब खबर कर रहे थे, एक चीज सामने बार बार आ रहा था कि रिकॉन्स्ट्रक्शन और वॉइस सैंपल टेस्ट, ये दो जो चीज था वो सब तो ठीक है, रिकॉन्स्ट्रक्शन नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये दो चीज जो थे उसी टाइम मुझे याद है कि आपने बहुत सारे के पास गए थे, जो लोग को दिखा, मतलब वीडियो में था सर। एक्चुअली ये वॉइस सैंपल टेस्ट या रिकॉन्स्ट्रक्शन जो भी चीज था एज पर इन्वेस्टिगेशन, ये पूरा तो डिपेंड था एज पर एविडेंस के ऊपर, राइट सर? एज पर एविडेंस, तो एविडेंस का जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए आपने ही भेजे थे, उसका जो ओरिजिनल रिपोर्ट था सर, मतलब हम लोग, मतलब मीडिया के सामने या पब्लिक डोमेन में तो अभी तक वो लेके नहीं आया था सीबीआई की तरफ से। आपने तो उस टाइम था सर, जो मटेरियल सबमिशन हुआ था मैथ्यूज सैमुअल की तरफ से, वो मटेरियल्स का ओरिजिनलिटी, जो स्टेटमेंट, जो सर्टिफिकेट, वही तो दिया था फॉरेंसिक लेबोरेटरी की तरफ से। उसमें क्या लिखा था सर? उससे रिलेटेड ओरिजिनलिटी नहीं था, ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है ये नहीं था। उस रिपोर्ट में सिंपल था पेन ड्राइव से रिलेटेड मैटर कि नो एडिटिंग नो टैंपरिंग, जबकि वो रिपोर्ट भी गलत है। वो रिपोर्ट गलत है? अच्छा, बिल्कुल गलत है। अगर मेरा रिपोर्ट आ गया सामने ना, 2 मिनट में सारा पेज खुल जाएगा, जो मेरा साइन किया हुआ रिपोर्ट है। सर क्या था आपके सिग्नेचर किया रिपोर्ट में, क्या था एक्चुअली? एडिट किया हुआ है भाई, मैंने तो क्लियर कट दिखा दिया कि कैसे एडिट किया हुआ है। आप मुझे थोड़ा बताएंगे, मतलब कैसे एडिट किया गया था, क्या एक्चुअली हुआ था? आप रिकॉर्डिंग आज के डेट में करते हैं आप भी? हाँ सर। हाँ, एक रिकॉर्डिंग आप सुबह 10 बजे कीजिए, एक रिकॉर्डिंग 11 बजे कीजिए। चलिए मेटा, अब दोनों का मेटा डाटा निकाल कर चेक कीजिए। मेटा डाटा मतलब हिस्ट्री का लीजिए, दोनों वीडियो का कंप्यूटराइज हिस्ट्री। क्या उसमें दोनों का टाइम एक ही दिखाएगा? नहीं। तो बस अब समझ जाइए, उनके मैक्सिमम वीडियोस ऐसे ही थे जो बिल्कुल टाइम गैप दे ही नहीं रहे हैं। रिकॉर्डिंग 5 मिनट का है और 2 रिकॉर्डिंग के बीच में 5 सेकंड का अंतर। अच्छा अच्छा, तो अब बताइए इज इट पॉसिबल, या फिर एडिटिंग से ही संभव है? सर ये जो बात आपने बताया, अगर एकदम लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको समझूं तो जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब मैं सोचिए कि मैं किसी से बात कर रहा हूं और एक कन्वर्सेशन हो रहा है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं कुछ और बात कर रहा हूं, अभी दोनों को अगर मैं पंच करके एडिट कर दूं तो मैं कोई तीसरा मीनिंग इसका खड़ा कर सकता हूं। हाँ, एक टाइम में दोनों को ही यदि एडिटिंग में आप लगा दीजिए तो दोनों को एडिटिंग में 4-5 सेकंड का अंतर रहेगा। बिल्कुल। हाँ, तो अब बताइए, जब आप इसको ओरिजिनल बोल रहे हैं कि यही मैंने रिकॉर्ड किया है, तो 5 सेकंड के अंदर आप 2 जगह कैसे प्रेजेंस हैं, 2 जगह रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं एक ही डिवाइस से? अच्छा, राइट। कोर्ट में तो ये मैटर आएगा ना।
इसलिए ना हम बोल रहे हैं इन लोगों को ऐसा आईओ चाहिए था जो टेक्निकली स्ट्रांग ना हो, गॉट इट चीजों को ना जो इन चीजों को ना पकड़ सके। सर एक चीज और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सीएफएसएल के रिपोर्ट से मैंने निकाल के दिखा दिया था कि सीएफएसएल की रिपोर्ट ही गड़बड़ है। इवन मैंने उनमें से दो जाएगा में ये 3 जगह गया था, तो एक जगह तो मना कर दिया था कि हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। राइट। बाकी 2 जगह के एक्सपर्ट को तो सिर्फ मैंने खुद बात किया था कि भाई जब आपने जब चेक किया, चलिए मैं मान लेता हूँ कि पेन ड्राइव का ही वीडियो चेक किया आपने, इस एंगल को चेक किया आपने कि एक ही साथ ओवरलैप कैसे हो रहा है वीडियो। सर दूसरा चीज जो आपके तरफ से जो सर्टिफिकेट मतलब लेबोरेटरी के तरफ से जो रिपोर्ट आया था, आपके तरफ से आपने जो रिपोर्ट साइन किए थे, मतलब ये भी सही नहीं है। मैं जब तक था कोई रिपोर्ट वो लेबोरेटरी का रिपोर्ट ना मेरा तो अपने रिपोर्ट में वो सब कवर किया हुआ है। हाँ कवर किया था, तो सर कोर्ट में तो प्रोड्यूस हुआ था, सबमिशन हुआ था सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन, उसमें आपका साइन हुआ रिपोर्ट सबमिशन हुआ था, या जो लेबोरेटरी की तरफ से आया था कि हाँ मेरा नहीं आपका रिपोर्ट नहीं सबमिशन किया था? मौका ही कहा ये लोग दिया, उसी बीच में तो आईओ चेंज कर दिया। अच्छा सर एक चीज मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। एक चीज, आई डोंट नो वेदर यू फॉलो बंगाल न्यूज और नॉट, बट एक चीज हाल ही में सामने आया है। एक एक्स जज है जिनका नाम है अभिजीत गांगुली, एक इंटरव्यू के दौरान वो तो चुनाव भी लड़ रहे हैं, मैंने देखा था कल न्यूज में, हाई कोर्ट का जज ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उपाध्याय करके छपा हुआ है। हाँ, इन्होंने एक इंटरव्यू में 2-1 दिन में बोला है कि शुभेंदु के नारदा जो पैसा लेने का वीडियो है उसके सिलसिले में बोला है। वो अभिजीत गांगुली बोल रहे हैं कि आप लोगों ने देखा है कि कागज में और के कुछ ले रहे हैं शुभेंदु, पर क्या आपने ये देखा है कि वो पैसा है कि नहीं? ये सवाल उन्होंने उठाया है। मैंने तो हर चीज पे क्वेश्चन उठाया है ना। इवन शुभेंदु अधिकारी के यहाँ अभी 2-3 रिकॉर्डिंग है, 2-3 क्लिपिंग है, और ये मैथ्यू से पूछिएगा, मैथ्यू मेरा पैर पकड़ लिया था कोचिन में। अच्छा, इतना पूछिएगा तो हम आपका पैर पकड़ लेंगे। सर एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन कर रहा हूँ सर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप जिस टाइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल रहे हैं सर, अराउंड 2017-18 के टाइम का, उस टाइम में सर जो जब स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए मैथ्यू सैमुअल आया था, खुद का नाम तो शंकुर शंकरन वो करके रख के वो किया था। हाँ, तो शंकुर शंकरन जो नाम को लेकर वो एक मेल आईडी क्रिएट किया था सर, शंकुर शंकरन 2011 उसका हिस्ट्री मुझे वो दिया नहीं था, तो वही मेल आईडी से तो वो सबके साथ मतलब इंटरेक्शन किया था। वो भी तो इम्पोर्टेंट था सर एज पर एविडेंस। देखिए एक चीज आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, मैं जब तक इस केस में नहीं आया था, मैथ्यू सैमुअल हर जगह जो भी सीबीआई से बात होती थी वो पब्लिश कर देता था, इंटरव्यू देता था। और मैं जब पहली बार कोचिन गया था तो वो मेरे पैर में गिर गया था। फिर मैंने उसको बोला कि अब जाके तुम पब्लिक में बोल के दिखाओ, तुमको हम बताते हैं बढ़िया से, 2 मिनट के अंदर तुम्हारा हवा निकाल देंगे। उसके बाद से देखिएगा पब्लिक में नहीं बोलता है। हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली। आपके लास्ट कन्वर्सेशन में मैंने बार बार सुना था एक चीज कि आपके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा था, ये चीज मैंने बहुत बार सुना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, मैंने तो जेडी तक को बोल दिया था कि आप राइटिंग में दीजिए जो बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ करीबन उसी टाइम पे जब आपके ऊपर दबाव बन रहा था, 2 बीजेपी नेताओं का सेंट्रल लेवल के उनका एक कॉन्वर्सेशन मेरे चैनल से मैंने एक्सक्लूसिवली एक्सपोज किया था, जहां पे सुनाई दे रहा था कि एक नेता दूसरे नेता को बोल रहा है कि मैथ्यू सैमुअल को 2 करोड़ रुपए देना है, वो कुछ और करेगा। तो ये मैथ्यू सैमुअल जो कैरेक्टर है सर, ये तो हर जगह हीरो बनने की कोशिश कर रहा था,
पर क्या आपके हिसाब से, आपके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, इज ही द एक्चुअल विलेन ऑफ दिस एंटायर थिंग? वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था कि उस समय उसके ऊपर वो पॉलिटिकल सपोर्ट पावर किया और पार्टी का लड़ाई का वो फायदा उठा रहा था, दो पार्टी का। पर ये तो होना नहीं चाहिए ना सर। सीबीआई है, ईडी है, तो इनको अगर कोई पार्टी चलाएगा तो ये कैसे, मतलब आप भी तो मान नहीं पाए, इसी कारण तो आपके खिलाफ भी सारे लोग हो गए। चला ही रहा है भाई। देखिए, मुझे हॉस्टाइल नहीं होना है अपने चीजों से। अब सोचिए, सामने जो डिफेंस वाला है क्या सवाल उठाएगा? जिसके ऊपर सीबीआई भरोसा नहीं कर रही है, उसके बयान पर कैसे भरोसा किया जाए? सही बात है। करेक्ट। उस केस का आईओ मैं हूं। एक तरफ आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने तरफ से गवाह बना के लाए हैं। ये डबल क्राइटेरिया। लेकिन जब सीबीआई को मेरे ऊपर भरोसा नहीं, 56 किस ग्राउंड पे होता है? इंटेग्रिटी या इफेक्टिवनेस? बिल्कुल राइट। प्रमोशन भी इंटेग्रिटी और इफेक्टिवनेस इसी पर होता है। राइट। तो मैं एक साथ दोनों के लिए क्वालिफाई कैसे कर गया?